तस्मान्नार भयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन पहले देखेंगे। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? सही बात है। ये बात समझ में आया? एग्रेसर बोल रहे हैं हम, एग्रेसर के बारे में देखेंगे। एग्रेसर किसको कहते हैं? आतताई बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये बोल रहे हैं कि इनको आतताइयों को मार के क्या होगा, पाप लगेगा हमको, बोल रहे हैं। इसलिए ये अच्छा नहीं कि जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं और ये जो हमारे सब फ्रेंड लोग हैं इनको मारना। आप तो माधव है ना, माधव मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पति है आप, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो मारने से तो मिस फॉर्चून आ जाएगा, फॉर्चून नहीं आएगा। इसलिए भगवान को माधव बोल रहे हैं। देखा आपने, हर जगह पे इसके पहले ही भगवान को अलग अलग नाम से बुला रहे थे, सबका कुछ पर्पस रहता है। और लोग को मैसेज कर देता हूँ। तो ये बात समझ में आया? परपट कौन पढ़ेंगे? परपट बहुत छोटा है। सिद्धार्थ पढ़िए। सिद्धार्थ। According to Vedic injunctions, there are 6 kinds of aggressors. 1. A poison giver. 2. One who sets fire to the house. 3. One who attacks with deadly weapons. 4. One who plunders riches. 5. One who occupies another's land. And 6. One who kidnaps a wife. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man. But Arjuna was not an ordinary person. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, um, Lord Rama was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Ram Rajya. But Lord Ram never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Rama because Ravana kidnapped Ram's wife Sita. But Lord Ram gave him sufficient lessons, unparalleled in the history of the world. In Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressor, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, grandsons, etc. Because of them, Arjuna thought he had that he should not take the severe steps necessary against ordinary aggressors. Besides that, saintly persons are advised to forgive. Such injunctions for saintly persons are more important than any political emergency. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reason, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness.
After all, kingdoms and pleasures uh, derived therefrom are not permanent. So why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Arjuna's addressing of Krishna as Madhava, or the husband of the goddess of fortune, is also significant in this connection. He wanted to point out Krishna that as the husband of the goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotees. थैंक यू। तो ये सबको क्लियर है। तो पहले अर्जुन बोल रहे हैं कि हम ये सब एग्रेसर को मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। एग्रेसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आतताई। और ये आतताई 6 तरह के होते हैं। शास्त्र हमको बताते हैं कि आतताई 6 तरह के लोग हैं। कौन कौन है? पहला, जो जहर दे देता है, जहर खा के मर जाओ। दूसरा, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो घर में आग लगा देता है उसको मारने के लिए। तीसरा, वन हु अटैक्स विद द डेडली वेपन्स, जो जानलेवा हथियार से हमला करता है। तो ये तीनों लोग हैं, मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जान लेने के लिए, या तो जहर देके, आग लगा के, या फिर हमला करके। चौथा, वन हु प्लंडर्स रिचेज, जो सारा धन लूट लेता है। वन हु ऑक्युपाइज अनदर्स लैंड, जो दूसरे का सारा जमीन हड़प लेता है। और छठा, वन हु किडनैप्स ए वाइफ, और जो किसी का पत्नी को हड़प लेता है। बढ़िया। तो 6 तरह के आतताई लोग हैं। इधर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इन आतताइयों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि इनको मारना। ये जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं और जो हमारे बंधु लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? ओ कृष्णा, ओ हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, एंड हाउ कुड वी बी हैप्पी बाय किलिंग आवर ओन किंग्समैन। तो सबको ना परपट में अच्छे से बताएंगे। पहले 6 तरह के एग्रेसर है। बोले कि एग्रेसर को मारने से पाप लगेगा, तो एग्रेसर 6 तरह के कौन कौन है, तो ये सबको याद हो जाएगा। 6 तरह के आतताई कौन है? देखो, कल का क्विज में ना मुझसे ज्यादा नंबर आप लोग लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने सेट किया था, मैं मिस्टेक से ऑप्शन सब देख नहीं पाया था, ठीक है, ठीक नहीं हुआ। तो पहला लाइन को हम पहले कवर करते हैं कि sin will overcome if we slay such aggressors। तो एग्रेसर 6 तरह के हैं, शास्त्र बताते हैं 6 तरह के हैं। कौन कौन 6 तरह के हैं, कौन बताएंगे? बोलिए राज। राज हाथ उठाए। ओके, कौन बोल सकते हो? सिद्धार्थ। ये विभू बुरा नहीं मान लेना, ठीक है। प्रभु, लाइक जो पहले 3 केस थे उतने तो कौरवास ने किए थे, वाज टू सेट द हाउस ऑन फायर लाक्षागृह में, टू गिव हाँ, नहीं, मैं पॉइजन, पूछ रहा हूँ कि 6 तरह के आतताई कौन कौन लोग हैं? to give poison, to set house on fire, to plunder riches, to get the land, to kidnap wife, and to attack with deadly weapons. आप एक्टिविटी बता रहे हो, वो एग्रेसर तो लोग होते हैं ना। तो जो हाँ। पॉइजन देता है वो एग्रेसर है, जो घर में आग लगा देता है वो एग्रेसर है, जो किसी पर हाँ। जानलेवा हथियार से हमला करता है वो एग्रेसर है, जो किसी का पत्नी को चुरा लेता है वो एग्रेसर है, किसी का धन चुरा लेता है वो एग्रेसर है, किसी का जमीन चुरा लेता है वो एग्रेसर है। तो 6 तरह के आतताई लोग हैं, ठीक है। तो पांडवों के साथ ये सब कुछ हुआ था। जहर दिया था, कौन जहर दिया बोलो? दुर्योधन ने जहर दिया था, है ना? दुर्योधन ने Yes. जहर दे दिया था भीम को। यस सर। और क्या हुआ? आग लगाया उनको, घर में लगाए थे सर। लाक्षागृह। अरे उनके लिए घर ही ऐसा बनाए थे जिसमें आसानी से आग लग जाए, लाइक का घर जी। बनाए थे, लक्षागृह। और उसमें वो प्लान किए थे कि जैसे ये लोग सोएंगे हम आग लगा देंगे, और वो लोग लगा भी दिए थे, लेकिन विदुर उनको ना अंग्रेजी में बता दिए थे। तो अंग्रेजी उधर सबको समझ में नहीं आता था, विदुर को समझ में आता था, उसको म्लेच्छ भाषा बोलते हैं। तो म्लेच्छ भाषा में उन्होंने बताया, युधिष्ठिर को समझ गए युधिष्ठिर। तो वो लोग ना रात में निकल गए थे टनल बना के, और घर में तो
आग लग गया और घर में उधर भिखारी लोग आए थे, 6 लोग आए थे, वो 6 लोग मर के राख हो गए, उनका कंकाल बचा था। दुर्योधन लोग देखे तो सोचे ये 5 पांडव और कुंती सब लोग मर गए। वो 6 लोग दूसरे लोग थे और ये कुंती और पांडव लोग टनल से सुरंग से नीचे से निकल के दूसरे जगह चले गए थे। देखा तो बच गए, लेकिन ये लोग ने घर में आग लगाया मारने के लिए। वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन, ऐसा किया क्या? वो मारने का प्रयास तो करते थे, लेकिन भीम से तो दुर्योधन हार जाते थे वैसे, है ना। और चौथा, वन हु प्लंडर्स रिचेज, ऐसा कौन किया? ऐसा कब हुआ पांडवों के साथ? शकुनी ने सर किया, ऐसा चाव हाँ खेला, जुआ, सब धन ले लिए। वन हु ऑक्युपाइज अनदर्स लैंड, वो भी तो ले ही लिए, एक सुई का नुक भी नहीं देने के लिए बोल रहे थे। वन हु किडनैप्स ए वाइफ, तो द्रौपदी का तो बहुत कितना गंदा तरीका से किडनैप किया, एक तो जुआ से ले लिए, दूसरा एक बार और जयद्रथ भी असफल प्रयास किया था द्रौपदी को किडनैप करने का। यस, तो 2 बार प्रयास किए ये लोग। तो ये 6 तरह के मतलब यातना इन पे हुआ है, एग्रेशन हुआ है। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये 6 अग्रेसर को मार के हमको क्या फायदा होगा। आगे देखते हैं कि सच अग्रेसर आर एट वंस टू बी किल्ड, शास्त्र बताता है कि ऐसे आतताइयों को तुरंत मार देना चाहिए। तो अर्जुन क्या शास्त्र पढ़े नहीं थे? देखो तुम, एग्रेसर्स आर एट वंस टू बी किल्ड, तुरंत उसको मार देना चाहिए, और उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ओके, कृष्ण इल्यूजन में डाल दिए थे, ऐसा कमेंट में आ रहा है। एंड नो सिन इज इनकर्ड बाय किलिंग सच एग्रेसर, सच किलिंग ऑफ एग्रेसर इज क्वाइट बिफिटिंग एनी ऑर्डिनरी मैन। ये लोग अभी तो नहीं कर सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ये कर सकता है। लेकिन अर्जुन ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, देखो पॉइंट कैसे चेंज हो गया। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ऐसा करेगा कि कोई आपको दुख दिया है तो आप उसको 2 थप्पड़ लगा सकते, आप बदला ले सकते, लेकिन अर्जुन ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे। ही वॉज सेंटली बाई कैरेक्टर, वो चरित्र से एक साधु व्यक्ति थे, भक्त थे भगवान के, एंड देयरफॉर ही वांटेड टू डील विथ देम इन सेंटलीनेस, तो साधुता से व्यवहार कर रहे थे। लेकिन दिस काइंड ऑफ सेंटलीनेस इज नॉट फॉर ए क्षत्रिय, क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता, तुम्हें शोभा नहीं देता वत्स। Although a responsible man in administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. मतलब साधु होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा डरपोक नहीं होना चाहिए। ये राजा ही डरपोक रहेगा तो फिर क्या होगा प्रजा का। तो हम उदाहरण के लिए देखते हैं भगवान रामचंद्र को। भगवान रामचंद्र सेंटली थे, बिल्कुल सेंटली थे, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी भी दुनिया में लोग चाहते हैं कि हमको राम राज्य मिले, भगवान का राम के जैसा राजा हो, राम के जैसे राजा। तो भगवान कभी भी ऐसा कोऑर्डिनेस नहीं दिखाए थे, डरपोक नहीं थे भगवान। जब रावण एग्रेसर बना, पत्नी को चुरा लिया, तो राम जाके उनका पूरा वंश का नाश कर दिए, पूरा लंका को जला दिए, वंश का नाश कर दिए। तो राम ने अपना दिखाया एग्जाम्पल से कि एग्रेसर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये साधु का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो राजा को ऐसा डरपोक नहीं होना चाहिए। कोवर्ड को और हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे तो डरपोक ही आ रहा है, डरपोक ही बोलते हैं। ठीक है, बोलते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 6 तरह के अग्रेसर को मारने से अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या फायदा होगा, और नहीं तो पाप भी लगेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 6 तरह के अग्रेसर है, और 6 तरह का अग्रेशन पांडवों के साथ हुआ है। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी उसको मार सकता है ऐसे अग्रेसर को, और कुछ पाप नहीं लगता है, ऐसा भी शास्त्र बताया है। अर्जुन क्यों नहीं मार रहे थे? क्योंकि वो साधारण आदमी नहीं है, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो सेंटली आदमी थे और साधु के जैसा व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन फिर बता रहे, देखो जो राजा है उसको साधु जैसा होना चाहिए, लेकिन डरपोक नहीं होना चाहिए। भगवान राम का एग्जाम्पल दिए, राम का राज्य सब लोग चाहते हैं, ऐसा राजा चाहते हैं राम के जैसा हो, कि अगर कोई अग्रेसर हो तो उसको तुरंत उधर सवंश वंश के साथ विनाश कर दे। तो ऐसा राजा होना चाहिए। आज के ऐसे डरपोक नहीं, सेना को भेज देते बॉर्डर पे, राजा खुद लुका के रहते, ऐसा नहीं राजा होता है।
तो रावण ने क्योंकि राम का पत्नी को चुरा लिया था, सीता माता को, तो लॉर्ड राम गेव इन सफिशिएंट लेसन्स, पाठ पढ़ा दिए। ऐसा पाठ पढ़ाए, ऐसा कभी इतिहास में ऐसा कोई किया नहीं था पूरा दुनिया में। ये भी लगता है वर्ल्ड का पॉलिटिक्स भी लगता है, अच्छा बात है। अर्जुन के केस में हाउएवर वन शुड कंसीडर द स्पेशल टाइप ऑफ एग्रेसर। राम के जीवन में तो एक एग्रेसर आया था, उसका अच्छा से पाठ पढ़ा है भगवान, लेकिन अर्जुन का जीवन में जो एग्रेसर था वो थोड़ा स्पेशल टाइप का था। कैसा था? तो उनके खुद अपने लोग थे, अपने दादा, अपने टीचर, अपने फ्रेंड, अपने बेटा, अपना पोता, अपने ही लोग थे। ये लोग ही इनके साथ एग्रेशन कर रहे थे। तो उसके कारण अर्जुन ने सोचा that he should not take the severe steps necessary against ordinary aggressors, कि साधारण एग्रेसर्स के साधारण आतताई के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं वो हम इसके तरफ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये साधारण नहीं है, हमारे अपने घर के लोग हैं, पिता है, पुत्र है, पोते हैं, टीचर है, फ्रेंड्स है। Besides that, saintly person are advised to forgive. साधु लोगों को ऐसा शास्त्र बताते हैं कि आपको ना माफ कर देना चाहिए, कोई कुछ गलती भी करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। Such injunctions are for saintly persons are more important than any political emergency. तो बोल रहे देखो एग्रेसर को मार देना चाहिए, ऐसा कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है, मतलब पॉलिटिक्स बताते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे अर्थशास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो धर्मशास्त्र को फॉलो कर रहे थे, ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य लोग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो बोलते हैं कि हम धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर है, तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में ये सब पॉलिटिक्स है कि कोई मारा तो नेले पे देला करेंगे। लेकिन हम धर्मशास्त्र पालन करेंगे कि हम साधु है, अगर कोई गलती किया तो हम उसको माफ कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुना कंसिडर दैट rather than kill his own kinsman for political reason, it would be better to forgive them on ground of religion and saintly behavior. कि धर्मशास्त्र के हिसाब से हम उसको माफ कर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। पॉलिटिकल कारण के कारण हम उसका मर्डर कर दें, इससे अच्छा है कि हम धर्म का पालन करेंगे और लोगों को माफ कर देंगे। वाह क्या अर्जुन! इसलिए उन्होंने सोचा कि सच किलिंग प्रॉफिटेबली consider such killing profitable simply for matter of temporary bodily happiness. वो बोल रहे कि ये सब तो मटेरियल चीज है, कि फायदा क्या होगा? राज्य मिलेगा, तो राज्य मिलके क्या होगा? आखिर ये तो टेम्पररी होता है। आफ्टर ऑल किंगडम्स एंड प्लेजर डिराइव फ्रॉम आर नॉट परमानेंट, कि हम जीत के राज्य मिलेगा, पॉलिटिक्स शास्त्र से जो भी हम करेंगे ये सब पॉलिटिकल पोजीशन तो टेम्पररी होगा ना, हम धर्म को फॉलो करेंगे बोल रहे। So why should take risk of life and eternal salvation by killing his own kinsman? अपने ही लोगों को क्यों मारना चाहिए? स्वजन को मारने से तो पाप लगता है, ऐसा भी शास्त्र में बताया। तो अर्जुन अभी कृष्ण को बोल रहे हैं माधव, क्या बोल रहे हैं? माधव बोल रहे हैं। इसके पहले भगवान के बहुत सारे नाम आए, कोई बताना चाहेंगे? 1 2 3 4 5। ऋषिकेश, ऋषिकेश, मधुसूदन, मधुसूदन, और बिना हाथ उठा के बोल सकते हैं। ऋषिकेश, मधुसूदन, केशव, हाँ गोविंदा, केशव, केशव, केशव आया था क्या? हाँ, कृष्णा भी आया, माधव, माधव तो भी आया, यस ठीक है। तो माधव बोलते हैं किसको? माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, जो लक्ष्मी के पति है। तो लक्ष्मी यानी गॉडेस ऑफ फॉर्चून, उनके हस्बैंड है। तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड है, हम इन लोग को मारेंगे तो मिस फॉर्चून हो जाएगा। बोल रहे आप तो गॉडेस फॉर्चून के हस्बैंड है, आप मिस फॉर्चून कैसे कर सकते हैं? लेकिन उनको मालूम नहीं, भगवान कभी भी किसी का मिस फॉर्चून नहीं कर सकते। भगवान के कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं वो फॉर्चुनेट बन जाते हैं। भगवान के कांटेक्ट में, भक्तों के कांटेक्ट में, भगवान का कुछ भी चीज के कांटेक्ट में लोग आते हैं तो अनफॉर्चुनेट लोग भी फॉर्चुनेट बन जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन आप तो ऐसे गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड है, आप मिस फॉर्चून मत कीजिए। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि भगवान को, अर्जुन को इंड्यूस नहीं करना चाहिए था कि अरे आप मारो, क्योंकि ये मारने से मिस फॉर्चून होगा। लेकिन कृष्ण ऐसा कभी नहीं करते हैं। कृष्ण however never brings misfortune to anyone to say nothing of his devotees. अपने भक्त का तो कभी मिसफॉर्चून कर ही नहीं सकते, किसी का नहीं करते।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये बहुत छोटा सा है। ये श्लोक हमारे बाद कौन डिसाइड करना चाहते हैं? विभू। यद्यपि एतेन पश्यन्ते, यदि सर थोड़ा और रिपीट कर देंगे। यद्यपेतेन पश्यन्ते। यद्यपि एतेन पश्यन्ति। ओके, मुझे लग रहा है शुभ्रांशु पढ़ना चाहता है, उसको मौका दो, क्या बहुत साल के बाद आया। सर जी आज सर। मैं पढ़ लेता हूँ। शुभ्रांशु जी को जी मौका सर। देते हैं। ओके, देखो जी जी। विभू दत्ता बहुत दयालु है। बोलो, जी सर। यद्यपि एतेन पश्यन्ते यद्यपि तेन पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः कथं नाज्ञाम् कथम सर और एक बार रिपीट कर देंगे। कथं न गेयमस्माभिः कथम नाजेनम अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रापर्शब्धिर्जनार्दन। यहाँ पे कृष्णा का नाम है जनार्दन। देखो अभी अर्जुन कृष्णा को जनार्दन बोल रहे हैं। ओ जनार्दन, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? अभी भगवान को बोल रहे आप तो जनार्दन है। जनार्दन मतलब लिख रहे हो ओ कृष्णा, कृष्ण का नाम ही है जनार्दन। तो बोल रहे हे जनार्दन, ये जो लोग हैं ये तो नहीं देख पा रहे कि अपने ही लोगों से युद्ध करना पाप है और अपने ही लोगों को मारना पाप है। ये लोग ये नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? लोभोपात चेतसः, उनका चित्त लोभ से ओतप्रोत हो गया। तो लोभ के कारण ये नहीं देख पा रहे हैं कि अपने लोगों को मार के हम पाप करने जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये लोग नहीं देख रहे ना, मैं तो देख पा रहा हूं, मैं क्यों मारूं, मैं क्यों पाप करूं, ऐसा बोल रहे। ये समझा आपको? ये लोग लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण ये नहीं देख पा रहे हैं कि अपने ही लोगों को मारने में, युद्ध करने में पाप लगेगा। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं। Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? इनको नहीं मालूम है, नहीं जानते, इसलिए ये पाप कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं, मैं क्यों पाप करूं कृष्णा? तो परपट कौन पढ़ेंगे? माता पढ़ो। A Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhan. In this connection, Arjun considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjun decided not to fight. तो ये हमारा जैसा कंडीशन है। अर्जुन अपना ही डिसीजन बार बार भगवान को बता रहे, ये नहीं पूछ रहे भगवान आपका क्या डिसीजन है। इसके पहले भी अभी तक हमने 3 जगह पे देखा, बार बार अपना ही डिसीजन भगवान को थोप रहे हैं। भगवान ये है इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, ये है मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। भगवान का डिसीजन नहीं पूछ रहे, इसलिए अभी टेंशन में। तो इधर बता रहे कि क्षत्रिय को कभी भी अगर ऐसा मौका आता है फाइट का या गैम्बलिंग का, तो जब भी उनका राइवल पार्टी, अपोजिट पार्टी कोई चैलेंज करता है, तो क्षत्रिय का ऐसा स्वभाव होता है उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई और भी एक था,
ऐसे याद आ गया तो बोल दे रहा हूँ। कोई अगर अविवाहित स्त्री है, अगर वो भी अगर कोई क्षत्रिय को बोले कि मुझे स्वीकार करो, मुझसे शादी करो, तो क्षत्रिय को मना नहीं करना चाहिए। तो एक बच्चा इधर बोल रहा था, सर हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? बोला तुम क्षत्रिय है क्या? एक कॉकरोच देख के तो डर जाता है तू। क्षत्रिय है नहीं, क्षत्रिय कभी युद्ध से भागता नहीं है, तो उसको जब कोई गर्दन कटाने के लिए सामने चला जाता है युद्ध में, कभी पीठ दिखा के भागता नहीं। तो सारा कुछ क्षत्रिय जैसा होना चाहिए। तो क्षत्रिय को कभी भी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए बैटल और गैम्बलिंग को, जब उसका अपोजिट पार्टी उसको चैलेंज करे। तो चैलेंज क्षत्रिय को पसंद नहीं है। कुछ तो मैसेज में आ रहा है, थोड़ा देखते हैं। भीम को एक राक्षस योनि की माता जी ने अप्रोच किया था, तो एक्सेप्ट किए थे। यस, हिडिंबा वाला ना, हिडिंबा। अंडर सच एन ऑब्लिगेशन अर्जुना कुड नॉट रिफ्यूज टू फाइट। तो क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई युद्ध करने के लिए अपोजिट पार्टी ललकार रहा है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अर्जुन को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, मना नहीं करना चाहिए था युद्ध करने से, क्योंकि उसको चैलेंज किया दुर्योधन ने। इन दिस कनेक्शन अर्जुना कंसिडर दैट अदर, तो इसमें क्या बोल रहे हैं अर्जुन, अब श्लोक में जो बोल रहे थे कि जो अदर पार्टी है माइट बी ब्लाइंड टू द इफेक्ट ऑफ सच चैलेंज। बोले चैलेंज तो कर रहा है लेकिन वो मूर्ख को मालूम नहीं है युद्ध होगा तो वो मर जाएगा, तो इसलिए सोच रहे कि वो बेचारा अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि वो मर जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। बढ़िया। तो अर्जुना however could see the evil consequences and could not accept the challenge। देखो ये सब है ना क्वेश्चन है, इधर आंसर नहीं। आंसर सेकंड चैप्टर में मिलेगा और दूसरे भगवद्गीता के और अन्य चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा कि अर्जुन ने ये कारण बताया, तो भगवान इसको क्या आंसर देते हैं कि क्यों ये गलत है। तो हम खाली अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं कि ये सब गलत है। अर्जुन अपना क्या रीजन बता रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए। तो ये बोल रहे चैलेंज तो एक्सेप्ट करना धर्म था, लेकिन बोल रहे अरे वो अंधे लोग हैं, वो देख नहीं पा रहे रिजल्ट, मैं तो देख पा रहा हूँ, इसलिए जस्ट लाइक एग्जाम के बाद आंसर मिलता है। आंसर की मिलता है। यस। इधर ऐसा बात नहीं है, प्रश्न आंसर चल रहा है, प्रश्न खत्म होने के बाद उत्तर मिलेगा। ठीक है, अभी अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन के बाद आंसर। ये जो हम अभी देख रहे हैं ये आंसर शीट है। ठीक है, ये चेक किया हुआ आंसर नहीं है। तो ऑब्लिगेशन is actually binding when the effect is good, but when the effect is bad, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. Obligation is actually binding. ये obligation क्या है? चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो अगर इफेक्ट गुड होता, मतलब हम युद्ध करने से हमको कुछ अच्छा होता। क्या है? ऑब्लिगेशन एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन इफेक्ट इज गुड। हाँ, तो अगर अच्छा होता तो हम उसको स्वीकार करते, ये बोल रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा तो नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है इधर, तो हमको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं। अर्जुन ऐसा रीजन बता रहे, बोले चैलेंज है लेकिन इससे कुछ फायदा ही नहीं है, तो क्यों स्वीकार करेंगे? तो ये सब प्रोज कौन सा अर्जुन अपना दिमाग लगा रहे हैं। अर्जुन अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, भगवान से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो हम ये थोड़ा सा देख लेंगे, टाइम तो हालांकि हो गया है, इसका हम सब कुछ लगभग कर ली हम डिस्कस। तो पहले अर्जुन बोले कि अगर हम एग्रेसर को मारेंगे तो पाप आएगा, तो हमको कुछ फायदा तो होगा नहीं। आप तो माधव है, हम लोग ऐसा करके खुश कैसे हो सकते हैं? अपने ही लोगों को मार के हम खुश नहीं हो सकते। 6 तरह के एग्रेसर हमने बताया। 3 तरह के लोग, जान का खतरा, और 3 तरह के माल का खतरा। जमीन ले लेते, और क्या लेते? सारा धन ले लेते, और वाइफ को ले लेते। दे शुड बी किल्ड एट वंस, तुरंत उनको मार देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति बताता है। लेकिन ये धर्मशास्त्र को फॉलो कर रहे थे। अर्थशास्त्र को बोलता है कि मार देना चाहिए, धर्मशास्त्र बोलता है कि दया करना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहे मैं धर्मशास्त्र को पालन करूंगा, क्योंकि धर्मशास्त्र तो ऊपर है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या है? पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, लेकिन धर्मशास्त्र में रिलीजन एंड सेंटली बिहेवियर है। तो वो बताता है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए बोल रहे थे कि भीष्म को मार के, जो कि हमारे लिए पूजनीय है, तो पाप लगेगा। इसलिए अर्जुन चाहते थे कि हम साधु बनेंगे, हम उनको माफ कर देंगे। और आखिर किंगडम ये सब तो परमानेंट है नहीं। तो अर्जुन अभी कृष्णा को माधव बोले क्योंकि वो हस्बैंड है, धवा किसका? माँ लक्ष्मी का।
तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड है तो मिस फॉर्चून नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि कृष्णा नेवर ब्रिंग्स मिस फॉर्चून टू एनीवन, भक्त का तो बात ही नहीं है। तो फिर बोल रहे कि ऑब्लिगेशन तो है क्षत्रिय का कि रिफ्यूज नहीं करना चाहिए बैटल और गैम्बल के लिए, लेकिन जब वो चैलेंज किया गया तो, लेकिन अर्जुन इसको एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? बोले अरे वो लोग ना लोभ से अंधे हो गए, इसलिए वो लोग देख नहीं पा रहे, दोस्त को देख नहीं पा रहे। लेकिन दोस्त क्या है कि कुल क्षय हो जाएगा, पूरा कुल का नाश हो जाएगा, मित्र द्रोह करेंगे, क्वारलिंग विद फ्रेंड्स, तो ये सब नहीं कर पा रहे क्योंकि लोभोपहत चेतसा, देयर हार्ट्स आर ओवरटेकन बाय ग्रीड। लेकिन हे जनार्दन, व्हाई शुड वी हु कैन सी द क्राइम इन डिस्ट्रॉइंग फैमिली, हम तो देख रहे हैं कि फैमिली कुल को नाश करने में क्राइम है, हम क्यों ऐसा पाप करेंगे? पातकम ऐसा। तो ऑब्लिगेशन, ये फिर वही बोल रहे हैं कि अगर युद्ध करने से कोई फायदा होता है तो हमको युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध करने से तो नुकसान हो रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अर्जुन ने सोचा और अर्जुन ने डिसाइड किया, भगवान से कंसल्ट नहीं किए, डिसाइड कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। आगे हम चौथा रीजन कल देखेंगे। जुड़ने के लिए सभी को ढेर सारा धन्यवाद। अटेंडेंस लेने वाले प्रभु जी माता जी लोग अटेंडेंस लेंगे, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है? किसी को कोई क्वेश्चन, एनी कमेंट? हरे कृष्णा। थैंक यू। जो लोग पहली बार भी ज्वाइन किए सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने एक एनालॉजी पढ़ा था, मधुसूदन और केशव जैसे भगवान के नाम है ना, तो उन्होंने डीमन को मारा था, तो वो सेम जैसा नाम है। तो उसमें एक बार मैंने पढ़ा था कि अर्जुन का ऐसा डाउट है ना कि वो ऐसा डाउट कर रहे कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो भगवान को बोल रहे कि मेरा डाउट इज लाइक अ डीमन, तो आप उसको मार दीजिए। तो वो भी एक सेकंड एनालॉजी बोल सकते हो। हाँ यस, जब कृष्णा को मधुसूदन या और क्या बोले थे, केशव, दो नाम दिए। केशव बोले थे, किलर ऑफ केशी डीमन। हाँ केशव का मतलब, यस। तो क्योंकि भगवान सारे डीमंस को मारते हैं और हम जानते हैं कि डाउट्स आर लाइक डीमंस, तो हमको कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना चाहिए। तो अर्जुन को डाउट था ये सब कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो अर्जुन जान रहे थे कि आप तो राक्षस को मारते हैं और जो डाउट्स है वो भी राक्षस की तरह है, तो मेरे अंदर डाउट्स है, इसको आप खत्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप डिमंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस तरह मेरे डाउट को भी डिस्ट्रॉय कर दीजिए। यस थैंक यू। विभू हाथ उठाए, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर अर्थशास्त्र कौन सा वाला, वो कौटिल्य वाला जो बाद में आए थे, या वो तो बाद में आए थे ना? मनुस्मृति लिखा ना? जी सर। जो राज करने के लिए पॉलिटिक्स और ये सब शास्त्र है ना। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, हम अभी का क्विज शेयर करेंगे ग्रुप में, अनाउंसमेंट ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा सर।